Hello, everyone. Very good evening to all of you. Good evening, everyone. Am I audible and visible? Sandeep now? Abhishek, Swati, Raghuveer. Very good evening. I hope so. Is everything all right? Good evening, everyone. So let's get started. We were discussing about body language. We understood the importance of this aspect of communication, what we can call namely non-verbal communication. While you are not speaking, you are speaking a lot. So in yesterday's class, I think we had covered with the last slide, and that was the ear rub. Yes, ये डिस्कस कर लिया था ना कल. चले जी, तो a subconscious gesture that indicates the individual is confused about what she is hearing. Next one is hand to neck, back neck rub. बहुत कॉमन ना. कई बार तो गर्दन दर्द होने लगती है. आजकल WFH का जमाना, वर्क फ्रॉम होम. लोअर बैक की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है आज के टाइम में. मुझे भी है. जितने लोग चेयर पे बैठते हैं, काम करते हैं, आईटी वाले लोग, बुरा हाल है. So sometimes people who are lying will rub back of neck while looking down and avoiding your gaze. तो ये जनरली है. मतलब मान लो तुम एक तरह से अपनी इलास्टिसिटी को चेक कर रहे हो या थोड़ा गर्दन को घुमा करके रिलैक्स होने की आप कोशिश कर रहे हो. दैट डज नॉट मीन दैट यू आर ट्राइंग टू लाई अबाउट समथिंग, बट जनरली people who are lying will rub back of neck while looking down and avoiding your gaze. वो आपसे आंखें नहीं मिलाना चाहेंगे और साथ ही साथ उनकी निगाह भी नीचे रहती है. Other times this gesture is a signal of frustration or anger or pain in the neck as well. So वही है कि वो ध्यान में रखना है. That could be a sign of pain in the neck as well. ठीक है. Next one is, क्या बात है, hands behind head. Clasped hands behind head is an indication that the individual is relaxed. पूरा आराम कर रहे हो, काम हो गया है अब. Right? So you are doing aram. If individual is also leaning back and has chin lifted, this indicates the feeling of superiority or smugness as well. You are sitting in your cabin alone, and if you are doing something like this after an extended working hour, that is understandable. But someone is sitting before you and you are in a kind of conversation and still you are doing like this, so that simply reflects that you have a feeling of superiority, you have a superiority complex, what we can call, or you are smugness. ये दिखाता है. तो इन तरह के भाव भंगिमाओं से जरूर बचना चाहिए किसी भी फॉर्मल सेटअप के अंदर जब कोई सामने आपके बैठा हो तो. नाउ लैंग्वेज ऑफ द आर्म्स. This one, folded arms, signifies a defensive or insecure attitude. If both hands are tucked under armpits, this generally signifies a response to the cold. जब बहुत ठंड होती है ना तो बिल्कुल ही हाथ इस तरह से बांध लेते हैं, अपने आप को गर्माहट देने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है. So if both hands are tucked under armpits, this generally signifies a response to the cold. Otherwise, it signifies what? A defensive or insecure attitude. हाथ बांध करके आप खड़े. Next one, folded arms with clenched fists. हैं, मुट्ठी भी बंद है तुम्हारी. हाथ तो है ही है ऐसे लॉक, मुट्ठी भी बंद है. So the clenched fists indicate defensive and hostile feelings. This posture might also be accompanied by clamped jaw and flushed face. आप देखें, फेस भी उसी तरह का डिजाइन है, स्केचिंग भी वैसी ही है. तो ये भी आप कर सकते हैं कि जॉ भी आपके क्लैम्ड रहे और एक तरह से एक होस्टाइल फीलिंग्स, हॉस्टिलिटी वाली दिखाई दे रही है. आप डिफेंसिव होने की भी कोशिश कर रहे हैं. अतुल इज सेइंग डॉन पोजीशन. वो पीछे वाली डॉन, चेयर पे आराम से टेक लगाने वाली, दैट इज डॉन पोजीशन. तो क्लियर है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है फेस, जॉ.
single arm cross, subtle version of full arm cross, generally signals insecurity. सिंगल आर्म क्रॉस इस तरीके से, और पुरानी फोटोज में देखने को मिलता है ना, मतलब लेडीज को जैसे लगता था, फोटोग्राफर ये बोला करते थे, आप 80s की 90s की फोटो देखें, पहले तो वो शादी कराने के लिए लड़कियों का फोटो सेशन होता था ना, तो वहां पे ऐसे फोटोग्राफर खड़ा कराते थे इस तरह से. एनीवे, so that is the single arm cross, subtle version of full arm cross, generally signals insecurity. So definitely if the photographer is telling you to pose like this, that's a different thing, but in general if you are doing something like this, that generally signals insecurity. वैसे आजकल कम देखने को मिलता है वैसा. नाउ द क्रॉसिंग एट द नी, पैर को लेकर के भी बड़ा है, लैंग्वेज ऑफ द लेग्स एंड फीट. और जैसे कहा गया कि द टेबल इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, if the table is not present, then definitely this particular part is also under surveillance, that is also under observation. ये ध्यान में रखना है. Got it? I. A relaxed social leg crossing posture that is assumed by both men and women in Europe. Generally in America, this posture is limited to females. Yes. So, British culture के अंदर दोनों के लिए acceptable है, men and women, right? But generally in America, this posture is limited to females. Now this one. It is a predominantly male form of leg crossing in the Western world, particularly in US. This posture is not acceptable in Middle East since any display of the sole of a shoe is an insult. Yes, and definitely this pose is absolutely unacceptable, because if you are sitting in a particular group or someone is sitting before you and the sole of your shoe is facing to that person, is absolutely unacceptable. तो इसका भी ध्यान रखना है. और कई बार आपको ये इंटरव्यूज में दिखाई भी दे जाता है, नॉट इन अ फॉर्मल सेटअप बट in a TV interview, particularly if there are people from movie business, and वो तो कई बार जूते को रख करके सोफे पे ही बैठ जाते हैं, पैर को घुमा करके क्रॉस करके, तो उन चीजों से हमें नहीं सीखना है, इसका ध्यान रखें. नहीं है इसके, बिल्कुल नहीं करना पड़ता. फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच तभी बता पाओगे जब योर फंडामेंटल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज क्लियर. लाइक व्हाट इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. वहां कुछ रटना नहीं होता, वही सिखाया जा रहा है, आप वही पूछ रहे हो. दिव्या इज आस्किंग अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. अंग्रेजी बोलने वाले लोग कहां से लाएं बात करने के लिए? दिव्या, आई थिंक यू हैड ज्वाइंड दिस बैच लेट and probably you haven't seen all the videos. But otherwise, you must have seen, I think in the starting classes, I had discussed this aspect, that you have to listen to yourself first. You do not need anyone to talk to you. Just listen to something and start talking about that. Start talking about that. First, be confident within yourself that if you have gone through a particular article or if you have watched a particular talk show in television, right, on YouTube or anywhere like that, and then you are going to talk about that particular topic, are you able to talk about that particular topic for, let's say, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes without committing any grammatical mistakes in your sentence structure? Choices of words are appropriate or not, so just observe these things. हमारी तरह दूसरा ही बात करने वाला हो तो उस बात करने से कोई फायदा नहीं है. पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना है. एंड मैंने ये भी आपको सुझाव दिया था कि इट्स नॉट अबाउट एनी करंट अफेयर्स और एनी टॉपिक ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमी, फाइनेंस, बैंकिंग, जियोपॉलिटिक्स. डू नॉट गेट इनटू दीज काइंड्स ऑफ टॉपिक इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल. स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दोज टॉपिक्स इन विच यू आर कंफर्टेबल. उनके बारे में पढ़ाई कर लेना. आपका किसी एरिया में इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में पढ़ो एंड देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट. तो प्रोनाउंसिएशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बार बार कहा था, लिसनिंग एंड इमिटेशन इज इंपॉर्टेंट. सो लिसन टू समथिंग विच इज स्टैंडर्ड एंड देन ट्राई टू इमिटेट दैट एंड डू फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन,
vocal intonation, vocal energy, voice modulation, projection of your voice. Do observe these things. Nobody else can guide you for this other than you. You are your guru in this line. किसी की जरूरत नहीं है. I am here just to guide you that what you are supposed to do, how you are supposed to do, and why you are supposed to do. These three things are with me. Rest of the game is with you only. And if you are doing practice on that line, you will definitely excel, right? खुद से बात करिए, अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए. एक सज्जन ने रिकॉर्डिंग भेजी थी, पता नहीं हो सकता इसी बैच में हो. एक दिन पहले मैंने मॉर्निंग में, बट मैं आई वॉज बिजी समवेयर, आई कुडंट लिसन टू दैट पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग. लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा था. लेट मी सी अगर मुझे मिल जाए तो. तो ये बहुत जरूरी है. He hasn't written his name. Yes, Avanish. Avanish has sent this. There is a problem in my mobile, like app or something. So he has written that he's doing but hum kind of stammering. तो वही है, विदाउट रिकॉर्डिंग एंड विदाउट एनालाइजिंग योर रिकॉर्डिंग आप ये चीजें नहीं कर पाओगे. एनीवे, leg lock position. Generally, women will assume this posture. Many women will sit like this when cold. Some women will assume this posture when they are nervous or defensive as well. बहुत तरह के सिग्नल्स मिलते हैं. हाँ, कॉफी विद करण में बोलते हैं इनफॉर्मली, बिल्कुल. देख सकते हो कॉफी विद करण. यू कैन ऑल्सो वॉच दैट पर्टिकुलर शो. इवन आई स्टार्टेड वॉचिंग बैक देन इन 2005. आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट शो, आई थिंक 2003 में शुरू हुआ था. तो सिंस देन आई हैव बीन फॉलोइंग दैट. बिफोर दैट आपके पास ज्यादा तो देखा नहीं था मैंने, बट बाद में देखना शुरू किया. रांडेवू विद सिमी ग्रेवाल ऑन स्टार वर्ल्ड, वो उस समय आया करता था. तो पहले तो टीवी पे ही लिमिटेड था, फिर धीरे धीरे यूट्यूब जब बढ़ने लगा तब तो सारी चीजें एक्सेसिबल हो गई. सो इवन यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, रांडेवू विद सिमी ग्रेवाल, राइट, एंड जस्ट लुक द फिनिश ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी. आई थिंक वो कौन सी फिल्म में थी, जो राज कपूर वाली फिल्म में थी, वो मेरा नाम जोकर. शी वॉज द हीरोइन एट दैट टाइम एंड शी इज स्टिल वेरी एक्टिव. She recently tweeted after watching the movie of Kangana Ranaut, Thalavi. उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया. तो ये सभी चीजें हमें इंस्पायर करती हैं बेहतर अपने आप को कैरी करने के लिए, बोलने के लिए. लुक एट द फिनेस एंड क्लास एंड एलिगेंस ऑफ सिमी ग्रेवाल एट दिस एज शी हैज, यू नो. तो वो कॉफी विद करण जैसा नहीं था. एंड अगेन यू विल फाइंड द गेस्ट फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यू नो, द पॉलिटिकल पीपल, इवन अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल. बाहर के लोग भी आए, बिजनेसमैन. आपको अंबानी साहब का इंटरव्यू मिल जाएगा, एक्टर्स का मिल जाएगा. इफ यू कुड वॉच द इंटरव्यू ऑफ ऐश्वर्या राय और सुस्मिता सेन, वॉच द इंटरव्यू ऑफ सुस्मिता सेन, you will get to learn a lot. How, you know, vibrant she is when she speaks. So definitely they are beauty peasants, and communication is one of the important aspects they need to work on. So just observe the, you know, interview of Susmita Sen. It's really very pleasing. या ऐश्वर्या राय के इंटरव्यूज आप देख सके, इंग्लिश इंटरव्यूज. तो आपको बहुत सारी ये बातें समझ में आएंगी. द होल मैनरिज्म, गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए भी ये बात है, बिकॉज आपको बहुत सारी बातें जो विट होता है स्पीकिंग के अंदर, दैट यू नो हाउ टू कम अप विद सम विटी स्टेटमेंट, वो दैट्स ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. सो वो चीजें भी आपको समझ में आएंगी यहाँ पे. दिव्या करी सर, हमारे साथ के लोग तो हिंदी ढंग से नहीं बोल पाते, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है. बिल्कुल दिव्या, आई अग्री विद यू. कब तक दूसरों पर ठीकरा फोड़ोगे आप? बहुत सी जगह पे लोग हिंदी नहीं सही बोल पाते हैं, तो उसके क्या लेना देना है? आप बोलने की बात करो ना, आप अपने बोलने की बात करो. अभी आपने देखा है जो ओलंपिक्स हुए, पैरा ओलंपिक्स हुए, जो खिलाड़ी हैं वो किन बैकग्राउंड से आते हैं?
तो क्या उन्होंने ये कहा कि हमारे परिवार में तो कोई कभी कुछ खेला भी नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते? उनकी अपनी जर्नी है, तो आप अपनी जर्नी शुरू करो ना। इन सब चीजों के बारे में बंद कर, मतलब सोचना और बोलना भी बंद कर दो कि हमारे साथ के लोग, साथ के लोग तो मतलब ठीक है, साथ के लोग हैं जो, आपकी जिंदगी आपकी है, यू आर लीडिंग योर मेन लाइन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दे आर जस्ट द हेल्पिंग हैंड्स। आपका मेन पाइप है, ये बाकी पाइप जिंदगी में अलग अलग समय पे जुड़ते जाते हैं बस। तो माता पिता एक समय तक प्रभाव डालेंगे, उसके बाद उनका भी प्रभाव कम है, वो भी तो सीमित ही है, वो भी तो लिमिटेड है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना रेंज बढ़ाइए, आप देखिए। एंड अगेन मैं बार बार ये कहता हूं, वी आर वन ऑफ द ब्लेस्ड जनरेशन बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद द टेक्नोलॉजी, वी आर ब्लेस्ड विद द चीप इंटरनेट, वी आर ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट, यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग इजिली। ये वरदान है हमारे लिए, तो ट्राई टू यूटिलाइज दीज थिंग्स। आज आप कोई भाषा सीख सकते हो, आपको रशियन सीखना है, जर्मन सीखना है, देयर आर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, देयर आर पीपल लेटिंग यू लर्न। तो आप कुछ भी चाहिए तो आज के समय में सीख सकते हैं, बट यू हैव टू बी अ लर्नर। हमें शिकायतों से दूर आकर के लर्न करना पड़ेगा। सो लेग लॉक पोजीशन क्लियर हो गया आपको, राइट? समटाइम्स इट बिकम्स, कई बार मतलब दिक्कत भी हो जाती है इसमें, जब आप स्कर्ट पहने हों इस तरह की सिटिंग में, तो जाहिर तौर पे आपको बचना चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर एनी यू नो इंटरव्यू, सो डेफिनेटली इस तरह की ड्रेसिंग में बचना चाहिए। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन एनी अटायर, यू शुड डेफिनेटली नॉट वियर दैट, एज सिंपल एज दैट। कोई कह रहा हो आप पे बड़ा अच्छा लग रहा है ये वो, इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट अटायर, you should not wear that, because that would reflect on your body language and face as well. Now this one, ankle to ankle leg cross, just observe this position. This is considered the most polite, demure form of leg crossing, used by people posing for formal pictures and sends a message of proper form and decorum, so you need to understand this particular aspect as well. Sometimes the earlier one was has some sexual tinge as well, so I'm not getting deep into that, but that has some sexual intonation is also there. Anyway, so ये आपका फॉर्मल है और इसको ध्यान में रखें, यूज्ड बाय पीपल पोजिंग फॉर फॉर्मल पिक्चर्स एंड सेंड सम मैसेज ऑफ प्रॉपर फॉर्म एंड डेकोरम. Repetitive foot tapping or wagging, this is very common है. एक पैर पे पैर रख दिया ऐसे और जो सैंडल है ऐसे ऐसे अपना हिलाते रहेंगे. So that is what foot tapping or wagging. Repetitive tapping or wagging of the foot is an indication of impatience, boredom or nervousness. The redundant foot movements are said to reflect a latent desire to run away. ऑब्जर्व करना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक पैर बेड पे सो रहे हैं तब भी वो ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, सोफे पे बैठे हैं तो भी हिलाते रहते हैं, टेबल पे क्रॉस करके टीवी देख रहे हैं, हिलता रहेगा लगातार. सो ये कई बार आप ऑब्जर्व नहीं करते. तो रेपिटेटिव टैपिंग और वैगिंग ऑफ द फुट इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेशंस, बोर्डम और नर्वसनेस. एंड रिडंडेंट फुट मूवमेंट आर सेट टू रिफ्लेक्ट, ऐसा कहा जाता है कि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? लेटेंट डिजायर टू रन अवे. लेटेंट इज व्हाट? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, राइट? तो ऐसी डिजायर कि आप वहां से भाग जाना चाहते हैं, पैर बिल्कुल बेताब हैं कि कहां मौका मिले कदम रखो और उड़ चलो. कोई एडवर्टीजमेंट आपको इंटरेस्टिंग दिखाई दिया इधर? यहां पे हम हेयर की और हेड की और फेस की बात कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन को कुछ लोगों ने पूछा है कि कमला पसंद का ऐड अमिताभ बच्चन भी करने लगे हैं क्या? शायद मैंने वो ऐड देखा नहीं अभी, मैंने बस आई थिंक ट्विटर पे देखा है. तो वही वाली बात लोग कहने लग गए कि अमिताभ बच्चन साहब, आप हम जो पढ़ रहे थे ना वो कंटेंट जनरेशन में, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ फीमेल एनाटॉमी, तो अमिताभ बच्चन साहब ने वही जवाब दिया कि भाई उसमें बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो इसलिए हमें करना पड़ता है. हमारी भी जुड़ी है प्लस लोगों की भी जुड़ी हुई है. एनीवे, सो लैंग्वेज ऑफ द हेयर, हेड एंड फेस. हेड टिल्ट,
Good evening, Gajni. A slight tilt of the head to one side indicates interest on that individual's part. Oftentimes, when women use this posturing in the presence of a man, it is an indication that she finds him attractive. अब देखो धीरे धीरे सेक्सुअल टिंज आने लगा यहाँ पे, राइट? तो ये सटल साइंस हैं. स्लाइट टिल्ट ऑफ द हेड टू वन साइड, लाइक सपोज इफ देयर आर थ्री पीपल सिटिंग समवेयर. ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा ना, किससे बनाया जाए इससे? यस, तो थ्री पीपल आर सिटिंग समवेयर. सो दिस सिंपली इंडिकेट्स कि मान लो ये बीच में बैठा है, इसका थोड़ा सा झुकाव तो इसकी तरफ है. ही और शी इज कंफर्टेबल. ऐसा आपने क्लासेस में भी कई बार देखा होगा. जैसे मान लो यू आर गोइंग टू एनी कोचिंग क्लासेस समथिंग लाइक दैट, समवेयर लाइक दैट. तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा कि सपोज अगर उस बेंच पे चार लोग बैठे हुए हैं, बट देर आर टू फ्रेंड्स सिटिंग ऑन द सेम चेयर, वो ज्यादा क्लोज होंगे, उनके बीच में गैप कम होगा, गर्दन एक साथ होगी, दे फील कंफर्टेबल. और बाकी दो लोग अगर अनजाने हैं तो वो बिल्कुल सीधे बैठे होंगे. तो ये कई बार सिग्नल दिया जाता है इस तरीके से. मैं कई बार जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं उनको कराने में ये काम करता था कि अब क्लास में जरूर आप क्लास में उनके साथ बैठते हैं जिनके साथ यू आर कंफर्टेबल, but I used to divide them in the groups like 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 type. So suppose if there are 30 students, there will be 6 groups. और फिर उसके बाद all the ones एक साथ आ जाओ. तो अब all the ones का मतलब 1 2 3 4 5 1. इसका मतलब पहला और छठा, जाहिर तौर में इनमें कोई दोस्ती नहीं है, तो इनको मैं एक साथ करके ग्रुप बनाता था ग्रुप एक्टिविटी के लिए. तब जाकर के जीडी कराई जाती थी, क्योंकि दो दोस्तों के बीच में कराने का कोई फायदा नहीं है ना, वो कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ. एंड इफ यू आर गोइंग टू फेस दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशन एनीवेयर, you will definitely meet with those people you are not comfortable with. Those faces are new faces to you. So in order to simulate the same kind of situation, मैं इस तरह से ग्रुप एक्टिविटी कराता था. तो वही चीज है कि मुझे दूर से ही नजर आ रहा है कि किन दो के बीच में कंफर्टेबिलिटी है, और मुझे उन्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना है, सो दैट आई कुड असेस देयर रिस्पॉन्सेस. डिफरेंट familial background, different background, work experience, fresher, अलग अलग तरह लोगों को एक साथ मिंगल करो और फिर देखो क्या आउटपुट निकलता है. तो ये है. एंड ऑफ्टन टाइम्स व्हेन women use these posturing in the presence of a man, it is an indication that she finds him attractive. Raised eyebrows. Rapid lift of both eyebrows and widening of the eyes is most often an unconscious display of greeting behavior. Unconscious. What we call plastic smile or plastic greetings. When you enter the aircraft, enter any aircraft for that matter, किसी हवाई जहाज में जब आप चढ़ते हैं तो वहां पे क्या, जो हमारी एयर होस्टेसेस होती हैं वो वेलकम करती हैं आपको. So they are bound to do that because that's their job, and sometimes that simply reflects their smile reflects that it's a plastic smile. They are just doing for the heck of doing that because that is their job. They are not sincerely smiling or welcoming you. Oh, hello, welcome. सीरियल्स में देखें आप जो आती हैं टेलीविजन पे, उनमें कितनी ओवर एक्टिंग होती है, जरूरत से ज्यादा. तो ये सब खूब अरे वेलकम. सो वही लिखा हुआ है, रैपिड लिफ्ट ऑफ बोथ आईब्रोज एंड वाइडनिंग ऑफ द आईज. और कई बार तो है एक आईब्रो उठना, एक नीचे रहना, ऐसे वैसे बड़ी अदाएं हैं सबके अलग अलग मतलब. तो ये अनकॉन्शियस डिस्प्ले ऑफ ग्रीटिंग बिहेवियर है, ये हो ही जाता है. कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ फ्लर्टिंग जेस्चर डिफरेंट फ्रॉम ग्रीटिंग बिहेवियर in that the raised eyebrow position is sustained slightly longer or gesture might be accompanied by a sideways glance. कनखियों से देखना, तो किसी पे निगाह है आपकी, अब वो निगाह थोड़ी लंबे समय तक बस आईब्रोज भी ऊपर है. इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड विद ग्रीटिंग, इट्स अबाउट द टाइमिंग, हाउ लॉन्ग दैट इज. In the same manner like we discussed the handshake, like if you're shaking hands with someone and that person is not leaving your hand, and that is pretty obvious to you because now you are trying to leave and the other person is trying to is still with you in that particular handshake, and that is pretty much evident. And eye movement is also reflecting the same sort of thing, like there is some emotion what he or she is trying to reflect. Longer handshake, वैसे ही longer
अगर ये पूरा प्रोसेस थोड़ा लंबा चला गया, आपकी आंखें ऊपर ही हैं, कहीं नैना चार हो गए हैं और दोनों नैना, दो जोड़ी नैना आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो थोड़ा सा लंबा होके जाता है और कई बार आप साइडवेज ग्लैंस भी देते हैं. Wide eyes. If this gesture is accompanied by blinking, it indicates innocence. If eyes still maintain eye contact. Wide eyes are also an indication of surprise. Ghazni, this is your first online class. Welcome. Yes. So, can you give me some examples from the popular, personalities, celebrities? Have you ever observed this kind of behavior? Wide eyed if this gesture is accompanied by blinking, it indicates innocence. आंखें चौड़ी करके कई बार इनोसेंट बनने के लिए भी होती हैं इस तरह की अदाएं. कन्याओं में ज्यादा होती हैं, गर्ल्स, लेडीज, आंखें करके इस तरह से ब्लिंकिंग भी, तो वो इनोसेंस जाहिर करता है. और अगर ऐसा करते हुए आई कांटेक्ट भी मेंटेन्ड है आई कांटेक्ट मेंटेन्ड है, तो wide eyes are also an indication of surprise. So that is pretty obvious. Like if you're surprised, अरे तुमने इतनी आंखें बड़ी क्यों कर ली हैं, तो बड़ी आंखें भी कई तरह से हो सकती हैं. बड़ी आंखें डराने के लिए भी हो सकती हैं. बहुत सारे विलन किया करते थे पहले. सरप्राइज वाली आंखें अलग होती हैं, इनोसेंस वाली अलग हैं. ठीक है. Saurabh has observed this gesture in APJ Abdul Kalam's eyes. Okay. अनु सिंह, जाने कहा मेरा जिगर गया जी है, दिल गया जी, सॉन्ग में हीरोइन ने किया है. हाँ, ये बॉलीवुड में ना वो 60s 70s वाले हीरोइन में, मतलब जो मेलो ड्रामा होता था एक्टिंग में, ओवर एक्टिंग होती थी, वहां भरपूर तुम्हें ये बॉडी लैंग्वेज वाले एग्जाम्पल मिलेंगे, क्योंकि ओवरली डन होती थी चीजें. सत्यप्रकाश, आई एम सीइंग योर मैसेज, दैट्स प्रीटी लॉन्ग बट आई एम नॉट एबल टू रीड इट आउट. You are asking about the POS, parts of speech. Amrish, they are definitely not going to tell you that you are rejected at your face, So you will not be in the position to ask this question to the interviewer or HR that why was I rejected? Yeah, why am I rejected? So they don't tell you. It generally doesn't happen. वो बोल देते हैं कि we'll let you know. We will let you know. So this is a kind of indication that you are not selected. And definitely they need time because there are a couple of candidates who got shortlisted. They need to weigh their options as well. Like if we have 5 shortlisted candidates, which one is the best suit for our organization or for department? So it's not like that after the end of the interview, you will always have this opportunity to ask that why I'm rejected or why I'm selected or anything like that. बहुत बोलना पड़ता है भाई, बहुत बहुत बोल के थक जाता हूं मैं. कुछ बताया करो तुम लोग भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल यार. हाँ, तो अनु का एग्जाम्पल अच्छा था. एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही एग्जाम्पल था. जूही इज आस्किंग हाउ टू वर्क ऑन इम्पेशंस. जूही, हाउ डिड यू रियलाइज दैट यू आर इम्पेशेंट? Weaknesses. What was the incident that made you realize that you are an impatient girl? Now we become expert in understanding human psychology, but what I think that judging people based on these expressions is not always correct. Absolutely, Prem. We are not going to become the psychologist, right? So even the kind of psychology we are taught, that's a different thing, because that comes from the Western world. And we have a deeper understanding of the human psychology because our culture has always been like this only. We have always been into investigating the humans. हमारा पूरा विज्ञान ही ह्यूमंस पे रहा है. सारी हमारी शोध जानकारियां इंसान को ही समझने में रही हैं, क्योंकि हम अगर खुद को समझ लें तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. तो खैर मैं उस पर भी नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि आई हैव टू कम अप विद लॉट ऑफ Western psychologists, their theories, and there are some absolutely what we can call rubbish theories that is not practically feasible or possible, that is also given and they are written in the books and the people study them and they get degrees based on that. But we have a better understanding of the human psyche, mind. अगर आप हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं आप उनको पढ़ना शुरू करें, आप बाकी सब छोड़ दो, just go through with Gita in a detailed manner.
उसी को आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें, या कोई समझाए जहां ढंग से, उसको समझने की कोशिश करें, तो आपका काफी सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है ना। नई जनरेशन में इम्पेशंस इज वन ऑफ द प्राइम ट्रेट्स। वो क्या क्या शॉर्ट नए नए बड़े सारे टर्म्स आने लग गए ना। क्या है एक फियर, फियर ऑफ लूजिंग आउट, क्या बोलते हैं उसको। रश्मिका मंदाना आल्सो एक्सप्रेसेस दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन राज इज सेइंग। यस, हर्स वाज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वंस, अलग अलग तरीके से। शी इज द एक्सप्रेशन क्वीन। Amit, PDF will be available, brother. Don't worry. And what you said, Prem, that judging people based on these expressions is not always correct. I absolutely agree with you, because people can fake these expressions as well. And there are couple of cliched expressions जो अभी फेक से मुझे ध्यान आया कि फेक अंटिल यू मेक दैट, ऐसा कुछ है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के मोटिवेशन है कि जब तक तुम कर न लो तब तक तुम नकली नाटक करो। नहीं करना है नकली नाटक। नकली नाटक करने की वजह से ही डिप्रेशन दुनिया भर में आया है। नकली आदमी कितना जीवन जिएगा, कितना कितना कितना। मतलब अभी 2015 में ही तो आया था डिप्रेशन दीपिका पादुकोण को। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। एंड इवन इन माई कॉम्प्रिहेंशन बैचेस या बाकी जगहों पे भी शायद मैंने डिस्कस किया ही होगा कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस में। देर आर टू इंसिडेंट्स particularly in order to understand the flow of a paragraph. I take these examples. So when author gives some sort of example at the start of the paragraph, then you will be interested in reading the complete passage or paragraph. Or when author start with introduction or cliched expression or pedantic style of writing where he's talking about a lot of jargons, definitions, then you will be interested in reading that article. So answer is pretty simple. In the first way of writing, like somebody is talking about the definition of depression, or there are two experts from some leading global universities and how they define depression, then the kind of explanation, and then you get the example of Deepika Padukone. Then you will be interested in reading that article, or the article which starts with the Deepika Padukone's example. जाहिर तौर पे जाओ दीपिका पादुकोण के एग्जाम्पल से शुरू हो रहा है, आप उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होगे। बिकॉज हमें हैवी कंटेंट पढ़ने में कोई मन नहीं लगता। हमें कितने, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी ऑफ यू रीड बिजनेस न्यूज़पेपर्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, हाउ मेनी ऑफ यू रीड दीज न्यूज़पेपर्स? कितने लोग बिजनेस लाइन पढ़ते हैं, यार इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस कितने लोग पढ़ते हैं? जवाब नो में ही होगा ज्यादातर। If you're really, aspirant of CAT or other management exams, or you have some genuine interest, or the kind of work you do that is based on finance, economy, then you will be consuming those newspapers. Otherwise, you do not have any interest. Why is it so? Because there are technical words, technical vocabulary, jargons, and if you are not informed whatever is happening in the country or in the globe in that particular field, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। Please bring Geeta special batch. Okay जी। Phobia, fear of losing someone, thanatophobia. तो वाइड आइज पे हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये फियर ऑफ लूजिंग समवन, देखो आप, मौत का जो विज्ञान है, घर में कोई ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जिससे आपका संबंध ज्यादा पुराना हो तो आपको दुख ज्यादा होता है। आपके बगल में कोई पड़ोसी भी रहे, अंकल जी थे, ठीक है, बचपन से देख रहे थे, हालचाल लिया करते थे, बेटा कैसे हो, 10 साल 15 साल देखा उनको, 20 साल देखा, बगल में ही रहते थे, वो मर गए, क्या आपको उतना दुख होता है? घर में किसी की डेथ हो जाए, माँ बाप की डेथ हो जाए, भाई बहन की डेथ हो जाए, या माँ बाप के लिए बेटे या बेटी की डेथ हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। क्या साइंस है उसका? फियर ऑफ लूजिंग आउट। हर एक चीज की दवा है ये। इम्पेशंस, मैं वैसे कोई और टर्म था ये जिसको हम कहते हैं ना मिलेनियल लैंग्वेज। मिलेनियल लैंग्वेज का वो टर्म है, मुझे अभी नहीं ध्यान में आ रहा है, कि हमेशा इंप्रेशन की कुछ छूट न जाए, कुछ छूट न जाए, कहीं कोई पोस्ट न छूट जाए, किसी का लाइक न छूट जाए, किसी का अपडेट न देख पाऊं, कहीं छूट न जाए, मेरे आंखों के सामने से निकल जाए। तो ये जो है ना फियर ऑफ लूजिंग आउट,
लगातार, इसको क्या बोलते हैं? बोलो। I react easily when I'm not able to find anything. Juhi is coming up with, you know. मेरे ख्याल से वो जो मैं अगला बैच सोच रहा हूँ, दैट वुड बी प्रिटी इंटरेस्टिंग, वेयर यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट मी डायरेक्टली, बट दैट बैच विल बी लिमिटेड, 15 days का ही होगा, शीट्स लिमिटेड होंगी, बिकॉज उतने दिनों में मुझे निपटाना, मुझे नहीं लगता कि मैं 15 दिन में 100 लोगों से ज्यादा बात कर सकता हूँ. दैट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज आई हैव टू स्पीक टू यू. मुझे मजा आएगा, आपको भी आई होप मजा आए उसमें, क्योंकि बड़े फैंटास्टिक कमेंट्स निकल के आते हैं यहां से आपके लिए. हाँ जी, तो हम साइंस समझ रहे थे. देखिए, जब आपके अंदर कुछ मरेगा तभी आपको दर्द होगा, इस बात को समझो थोड़ा. जैसे आज किसी का बेटा मर गया तो पिता को दुख होगा या मां को दुख होगा, क्योंकि वो मां उसी दिन बनी थी जिस दिन उसका बेटा हुआ था. बहुत सारी आइडेंटिटी थी उसकी, किसी की बहन थी, दीदी थी, छोटी बहन थी, बुआ थी, मां जो भी. लेकिन आज वो मां उसी दिन बनी थी जिस दिन वो बेटा पैदा हुआ था. आज अगर बेटा चला गया तो वो उसके साथ वो मां भी मर गई. या किसी बेटे के लिए, बेटी के लिए उसका पिता चला गया या मां चली गई तो उस दिन वो भी बेटा भी मर गया, जो रिलेशन था उसका. तो कहने का मतलब कि हमारे अंदर जब कुछ मरता है ना, कुछ खाली हो गया, आज कुछ खाली हो गया. एक ही बेटा था मां के पास और वो बेटा चला गया, तो मां की जो इतनी सारी आइडेंटिटीज थी उसमें से एक बड़ी आइडेंटिटी उसके साथ थी, और उसके जाने के साथ मां के अंदर भी कुछ खाली हुआ है, कुछ खत्म हो गया आज उसके जाने के साथ. तो मां को दर्द होगा या बेटे को दर्द होगा, या फॉर दैट मैटर, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस संबंध के साथ आप जितने क्लोज होंगे उतना दर्द होगा. अगर वो क्लोजनेस नहीं है तो दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा. पालतू जानवरों के साथ भी बहुत दर्द हो जाता. घर में कोई कुत्ता था, बहुत प्यार था आपको, चला गया क्योंकि उसने एक जगह बनाई थी आपके अंदर. रोड पे कुत्ता मरा है, आप गाड़ी से जा रहे हैं हाईवे पे, आपको दर्द होता है क्या? कोई मुड़कर देखता भी नहीं है. उस बेचारे की लाश पक्की हो जाती है एकदम. और कोई आदमी भी मार दो, एक बार ऐसा हुआ था राजस्थान में, पता नहीं कहां की न्यूज थी, रात में मरा, सुबह तक वो बिल्कुल रोड पे बराबर हो गया. किसी को फर्क पड़ता है? फर्क तो उसी समय नहीं पड़ता है, घर पे ही कोई मर गया हो उसको मिट्टी बोलने लगते हैं ना, कि मिट्टी बाहर रखी है. खत्म हो गया, उसके बॉडी के प्राण जाने के साथ वो माता पिता भाई बहन जो भी संबंध थे वो तुरंत खत्म हो गए, उसको हम मिट्टी नाम देना शुरू कर देते हैं. तो ये सारी चीजें कि कौन सी चीज लूज हो रही है, वो जिसको लूज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट भी है क्या, क्या उसके बारे में सोचना भी चाहिए मुझे, क्या कैसे कैसे पागलपन हो चुके हैं आजकल लोगों को, क्या खो जाएगा. तो इन सभी चीजों में, सब लाइफ लेसन्स का है मामला. अब इनमें बहुत डिटेल्ड मैनर में हम चर्चाएं कर सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, सो दैट यू कुड हैव द क्लैरिटी ऑफ द साइंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. राइट, जैसे हमने एक मोटी से बात की थी कि द प्राइम ड्राइवर्स of our life is either greed or fear. And if you are honestly examining yourself, you will arrive to this conclusion that whatever I am doing, most of the time that is driven by either greed or fear. Because after doing this, I will get something. That's why I am doing something. Or if I am not doing this, I will lose something. And then I am doing that. या तो डर की वजह से काम कर रहे हैं या लालच की वजह से. और ये पूरा समाज और सिस्टम भी हमें डर और लालच की वजह से ही काम कराता है. लालच दे देगा, ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, तो हम उधर करने दौड़ जाते हैं, ये बिना जाने पहचाने या समझे कि वो चीज मुझे करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मैं उसके लिए बना हूं या नहीं बना हूं, कहीं मेरी क्वालिटीज, मेरा एप्टीट्यूड, एट्रीब्यूट, एटीट्यूड कुछ और करने के लिए तो नहीं बना. नहीं सोचेंगे हम, क्योंकि हम ड्राइव ही होते नहीं, नहीं ये वाला करके तुम्हें मिलेगा, करो. फिर पूरी जिंदगी कर रहे हैं लोग, नहीं मिल रहा. या डरा दो, अगर नहीं करोगे ना तो ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये करना पड़ेगा तुम्हें. तो कोई काम कब हम अपने मन से कर रहे हैं? पूछे जरा अपने आप से, मुलाकात करें. मुलाकात, फिर फ्राइडे है आज, जाते जाते फिर याद दिला रहा हूं, कल भी हमने बात की थी. मुलाकात करिए आप, अपने आप से पूछे पिछले 5 महीने से, 4 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? आप ही कर रहे हैं, कोई और करवा रहा है? करने में मजा नहीं आ रहा तो कोई और करवा रहा है. इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट. If I am not enjoying whatever I am doing, means what? I am not doing that. I am not doing that. And if you have arrived to this conclusion कि इसके किए बिना कोई काम चलेगा नहीं, तो प्यार भी जगा ही लो उसके साथ.
जिंदगी में बहुत पड़ाव पे बहुत अलग अलग काम करने पड़ते हैं। तो उस समय आप ये नहीं कहेंगे मैं यार ये करने के लिए नहीं बना था, क्या ही कर रहा हूं मैं। भाई जो काम कर रहे हो उसको करो, ईमानदारी से करो, उस समय टोटली वहां पे ईमानदार रहिए। हो सकता है आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हो, किसी और चीज के लिए बने हो, लेकिन अभी वो नहीं दिख रहा आपको। आपको दिख रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूं दीज आर द स्टेप्स। उस विजन को पाने के ये मिशन हैं अलग अलग पड़ाव पे। तो आप जब उस तरह से सोचना शुरू करोगे तो आप हर मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। चलिए साहब, वाइड आईज, स्क्वीड माउथ, a distorted version of the smile that indicates sarcasm, sarcastic smile। ये बहुत सारे विलेंस को दिखाया जाता था इस तरीके से, राइट। कई बार जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से, कई बार लोग जब हंसते हैं तभी उस तरह से मुंह उनका हो जाता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई अगर इस तरह से हंस रहा है तो उसका वो सरकाजम ही है। हो सकता है हंसते हुए चेहरे अलग हो जाते हैं। कई सारे लोग इसीलिए हंसना भी नहीं चाहते, दैट्स द रीजन कि भाई हंसने से, हंसने पे कहते हैं ना फोटो मेरी अच्छी नहीं आती, तो मैं ना हंसू तो बेहतर है। चलिए जी, आज आपकी सेवा में इतना ही। अब जो भी क्वेश्चन है अब आप पूछें आप। विपिन पूछ रहे हैं सर लाइव है? हाँ बेटा लाइव है, पहली बात आए। विद्युत सिंह, टुडे आई सॉ शिवम सक्सेस स्टोरी वीडियो, इन दैट वीडियो आई सॉ मोस्ट ऑफ द टाइम हिज हैंड जेस्टर इज कॉन्फिडेंट, यूजुअली स्पीकिंग, गिविंग आइडियाज, कमेंट्स एटसेट्रा। बहुत अच्छे विद्युत, बिल्कुल ना। अब देखो शिवम की स्टोरी कल पढ़ी, मेरे चैनल पे पढ़ी है, आरवाईपी पे पढ़ी है, आप जाकर के देख सकते हैं। कुछ ऐसे महानुभाव हैं वो कह रहे हैं कि वो 21 साल का नहीं लग रहा है। अब तुम अगर 21 साल में जाहिल हो, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, तुम टाइम खराब कर रहे हो, तो तुम्हें वो 21 साल का नहीं लगेगा। ऐसे भी लोग हैं, तो क्या शिवम अब जाकर के ऐसे लोगों को जवाब देगा? उसका व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट शेयर्ड है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, उसको कुछ मिलेगा क्या झूठ बताने में, या मैंने कोई तमगा दिया है उसको, या राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है? ऐसे भी जाहिल है। तो आजकल सोशल मीडिया पे आपको इतने तरह की पर्सनालिटीज दिख जाएंगी देखने के लिए। अब देखो विद्युत ने उसके इंटरव्यू में कुछ और देखा, तो वही चीज है, आप देखें बातचीत करने में ही इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहा है वो। हाउ टू ओवरकम शाइनेस, शाइनेस की स्पेलिंग सही कर लीजिए ओम प्रकाश जी। हाउ टू ओवरकम शाइनेस से पहले व्हाई आई एम शाई एंड विद हुम आई एम शाई, इसका जवाब ढूंढना है ओम प्रकाश जी। हाउ से पहले हम अगर वाई पूछ लेना तो बहुत काम हो जाएगा। वाई इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन, चलो टॉपिक ही दे देता हूं, बहुत टाइम हुआ तुम लोगों ने कुछ लिखा होगा नहीं, एक टॉपिक देता हूं। वाई इज फार मोर इंपॉर्टेंट, क्या जबान से सेंटेंस निकला है, देन व्हाट एंड हाउ। हमारी दिक्कत ही ये है, हम इसी में खोए हुए हैं, यहीं पे घूम रहे हैं हम। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सवाल कोई नहीं पूछता। क्यों करना है, क्या करना है, वो उसका ज्ञान भरपूर दे रहे हैं तुम्हें लोग। जिंदगी में स्क्रिप्ट लिखने वाले, बताने वाले भरपूर लोग हैं, क्या क्या करना है तुम्हें, और फिर कैसे करने वाले भी बहुत हैं। लेकिन ये क्यों कोई नहीं पूछ रहा है, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप जो भी सवाल पूछे उसके क्यों में जाएं। मैं शाई हूं, किसके साथ शाई हूं? Raghuveer is saying, sir, please bring an English special batch in English medium. I'm coming up with the English medium batch very soon, Raghuveer. नंदन सिंह, पता नहीं चला क्लास खत्म कब हो गया। बिल्कुल नहीं पता लगेगा, बिकॉज when you enjoy the process you don't realize. Japanese are very less expressive in terms of body language, more or less their expression are same. Absolutely, Amrish. They are like what we call poker face. अनु सिंह, कितने वर्ड में लिखना है? दैट इज योर चॉइस। बहती गंगा बहाओ, क्या सोचना है। Prem is saying, sir, please provide those expected personal interview questions today so that we can send you answers by Monday. मैं तो बस एक ही क्वेश्चन, अभी तो एक ही क्वेश्चन मैं आपको दूं अगर, या अगर क्वेश्चन देने की बात है तो वही है कि भाई पहला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन लिखिए आप। सेकेंड वन इज वाई। अब वाई के बाद आप खुद लगा लो जो भी आप करना चाहते हो। वाई, वाई दिस, गोल, जो भी आपका गोल है, पर्पस है, नौकरी है, पढ़ाई है, एडमिशन है, नौकरी का चेंज करना है, जो भी है वो वाई का जवाब लिखना जरूरी है आपको। नेक्स्ट वन इज
वेयर डू यू सी? मैं इसको अभी टाइप करके ना, मुझे ही खुद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब मेरे ही दिमाग की उपज है। तो मैं अभी टाइप करा के अब आपको अपलोड करा देता हूँ। वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years, ज्यादा दूर नहीं पूछ रहा हूँ, 5 years डाउन द लाइन, डाउन द लाइन, अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं आप? बिगेस्ट फियर तो मैंने पूछा था ना, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एंड रोल मॉडल आपका कौन है और क्यों है? रोल मॉडल हु एंड वाई, कौन है और क्यों है ये भी बताना है। इन 5 सवालों को जरा लिखने की कोशिश करिए, लिख करके आप शेयर कर सकते हैं। आई विल शेयर दैट फॉर्म। सत्यप्रकाश कह रहे हैं सर मैं 22 का हूं, मुझे देख करके बोलते हैं मैं 26 का हूं। भाई जब मैं 25 का तो मुझे 33 का बोलते थे, 35 का बोलते थे, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बहुत बढ़ जाती है, वो कम दिखते हैं, तो उससे क्या मतलब है? सत्यप्रकाश यू कैन स्पीक टू मी, देर इज अ व्हाट्सएप नंबर जिसको आपके साथ मैंने शेयर किया था शुरू में ही, आप उस पर कॉल करिए, वो कनेक्ट कर देंगे आपको। हाँ जी, कुछ सवाल आप पूछ रहे थे और अगर आप चाहते हैं तो पूछ लीजिए। हाँ, जो साहब पूछे थे शाइनेस वाला सवाल, तो वो आपसे सीधा ये क्वेश्चन है कि आप कितने किन के सामने शाई फील करते हैं, उसका वो क्यों वाला आंसर है। कब शाई फील करते हैं, किन के सामने करते हैं? घर में लोगों के, भाई बहन, दोस्त मित्र, कजन्स, इनके साथ आप क्या शाई फील करते हैं? नहीं करते। तो दूसरों के साथ क्यों करते हैं? क्या उनमें सींग निकल आती है उनकी? वो भी इंसान है, होमोसेपियंस रेस से ही आते हैं, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप शाई फील करते हैं? तो इसका आपको इस वाई का जवाब बहुत आसानी से, अगर आप इस वाई का जवाब लगाने की, पता करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। I have grammatical error in writing something. I think I have effective content, but I'm unable to write. Okay, Shalini. So you can write on these topics and you can share with me. I will look into that, try to figure out what's the problem. Abhishek is saying I am introvert. Juhi is asking about impatience. जूही आप हमेशा बचपन से ऐसी थी, इम्पेशेंस था? देखो, जब भी इम्पेशेंस आता है या अधीरता आती है, तो कुछ वो किसी खालीपन की वजह से आती है। कुछ खाली है जिसको लगातार भरना है, इससे भर लें, उससे भर लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो जो खालीपन है उसी को भरना है, और क्या है। आप देखिए कुछ लोगों की पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत रिलैक्स्ड होती है। शिवम का इंटरव्यू देखो, ही इज अ प्रिटी रिलैक्स्ड गाय, ही इज अ प्रिटी रिलैक्स्ड गाय, दैट्स द रीजन ही गॉट सेलेक्टेड। एंड उसके पहले ट्रांसफर उसका हुआ है हैदराबाद में। पहला ट्रांसफर क्या, पहली पोस्टिंग उसकी हैदराबाद में हुई है। अब वो लड़का कानपुर से कभी बाहर निकला नहीं, दिल्ली में वो पहली बार आया था, प्रयागराज गया हुआ था, कोई बताया उसने रिलेटिव की, सर मैं पहली बार दिल्ली आया हूं, ट्रेनिंग गुड़गांव में थी उसकी, हैदराबाद पोस्टिंग है उसकी। बट ही इज प्रीटी कॉन्फिडेंट, वो कहीं पे भी जा रहा था, क्योंकि मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूं उससे बातचीत करने में, और उसने वो सारी चीजें खुद पे मेहनत करके कमाई हैं। तो आपको ये कॉन्फिडेंस आपकी अचीवमेंट देती है, आपकी मेहनत देती है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे में नहीं है हम उसी को लगातार सोचते रहते हैं, सोचते ज्यादा है, करते कम है। अभी आप में से अगर मैं पूछूं तो इसमें 99% लोग हाथ खड़ा करेंगे कि आपने जितने भी अपने लिए गोल्स बनाए हैं ना, ये 5 years लिखा हुआ है ना, आप दिन का बता दो मुझे, हफ्ते का बता दो, गोल है आपके पास कोई? डू यू हैव एनी एक्शन प्लान? सो स्टार्ट मेकिंग शॉर्टर गोल्स फर्स्ट। मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, मैं ये बनना चाहता हूं। अरे तुम 5 साल के थोड़े हो, 5 साल में बच्चे एस्ट्रोनॉट, और मैं ये बनना चाहता हूं, वो बनना चाहता हूं, उसकी बात नहीं हो रही है। नाउ यू आर एन
you are young person, you are an adult, so whatever you are speaking that has some weight, that has some value. उस बात को ध्यान में रखना है आपको कि इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ गोल इन योर माइंड, सपोज आफ्टर ईयर आई एम सीइंग माई सेल्फ इन दिस पोजिशन, then what's the short term mission to achieve that particular goal? What is your weekly target? What is your monthly target? And when you will have a kind of annual target, you have to divide in monthly target. Monthly target you have to subdivide in weekly target. Weekly target day के target में divide होगा. तो अगर मैंने सुबह अपने आप से वादा किया कि आज शाम तक इतना काम करने के बाद जो भी आपका काम है, आपने रिवीजन करना है, अपने टॉपिक्स पूरे करने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, दैट इज योर कॉल एंड यू शुड बी दैट मच इंटेलिजेंट दैट व्हाट यू शुड डू. So whatever promises you are making with yourself at the start of the day, are you able to meet those promises at the end of the day? If you are not able to meet those promises, you will definitely become a weak person. You will become a diffident person. You will become an impatient person. Because in the back of the mind, there is a continuous picture going on कि यार इतना मेरा पीछे का ना पाइल अप हो रखा है. Impatient क्यों नहीं रहोगे आप? परेशान क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि आपने जो काम करना है वो आपने किया नहीं है. तो बस छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए. बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें सुनने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे छोटे टारगेट्स बनाओ, दिन के टारगेट बनाओ. दिन बनाओगे तो जाहिर तौर पे घंटे का बनाओगे. सोना, उठना, जगना सब कुछ आपका धीरे धीरे मैनेज होने लगेगा. आजकल तो मोबाइल फोन में वो भी फीचर आता है ना कि आप कितने टाइम पे ऑनलाइन थे देख सकते हैं. आप देखो कितना टाइम आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इधर उधर जगहों पे बिताते हो सकता है आप शॉक्ड हो जाओ जान करके कि आउट ऑफ 24 आवर्स दीज मेनी आवर्स आई स्पेंड ऑन सोशल मीडिया. What a rubbish I am doing with my life. So आपको रियलाइजेशन होगा वहां पे, क्योंकि आप एक तरह से डम्ब हो जाते हैं जब आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं कोई भी चीज. यू आर डूइंग माइंडलेस स्क्रॉलिंग एंड यू आर जस्ट trying to outsource your anxiety and frustration by doing these things. You must have observed this kind of stuff, like you are sitting in your drawing room watching television, sitting on sofa, but you are just kind of changing the channels. कहीं पे भी ध्यान नहीं है. तुम्हारी आंखें जैसे अभी थी ना, आंखें तुम्हारी सूनी सूनी आंखें, गाना भी था ना, सूनी सूनी आंखें. तुम्हारी आंखें सूनी हैं. टेलीविजन पे कुछ भी चल रहा है, लाइफ स्टाइल चैनल है, कुकरी शो चल रहा है, ऑटोमोबाइल के बारे में बता रहे हैं, सीरियल चल रहा है, अंग्रेजी न्यूज आ रहा है, हिंदी न्यूज आ रहा है. देयर इज नो डिफरेंस ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशन. यू हैव बिकम एब्सोल्युटली इनडिफरेंट. कुछ भी हो जाए. तो दीज आर द साइंस ऑफ व्हाट, मैं टर्म बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये सब डिप्रेशन के मतलब सॉफ्ट लेवल के, सॉफ्ट डिप्रेशन, व्हाट इज द राइट टर्म फॉर दैट. तो माइल्ड डिप्रेशन, नॉट द सॉफ्ट, ये माइल्ड डिप्रेशन के साइन है ये सब. एंड इवन इन दैट इंटरव्यू आपकी दीपिका पादुकोण ने ये कहा था कि 36% इंडियन पॉपुलेशन आर गोइंग थ्रू माइल्ड डिप्रेशन. 36%, यानी हर तीसरा आदमी से भी ज्यादा, कम ही हो गया, हर 2.5 आदमी, 2.5 तो हो नहीं पाएगा. तो हर तीसरा आदमी माइल्ड डिप्रेशन का शिकार है. अगर आपको यह लगता है कि आपको बेड से उठ जाना है लेकिन आप नहीं उठते, या आपको लग रहा है कि आप टाइम खराब कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप टाइम खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने अपने आप को प्रॉपर तरीके से इंगेज नहीं किया है. क्योंकि आज डिसएंगेज होने के लिए भरपूर माध्यम हमारे पास मौजूद है. देखते रहो, लेटे लेटे, मान लो उठने का समय 5 बजे था, थोड़ी देर और लेट लेते हैं, मोबाइल उठा लिया, कब 6 बज जाएगा पता ही नहीं लगेगा. अब तो आज 6 बज गया, अब तो शेड्यूल गड़बड़ है. तो ये चीजें इतनी अलर्ट रखनी पड़ेंगी आज के समय में. इसीलिए जो आज के समय में सफल लोग हैं वो बहुत सफल हैं, जो असफल हैं वो असफल ही हैं. क्योंकि असफलों के लिए और समाज के लोअर स्ट्राटा के लिए बड़े लोगों ने पूरा तामझाम कर रखा कि आप उन्हीं में उलझे रहे. तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उन सारे रिसोर्सेज का हम बेहतर फायदा उठा सकें. I feel difficulties in starting any conversation or presentation, but once I start, I don't feel any difficulties. But that much time I didn't get any GD or lecturate. What can I do? Prem is asking. Definitely, you're preparing for SSB or something like that. So, Prem, I did discuss about these things at the start of this batch. Basic चीजों में हमने discuss किया था how to start the conversation, how to break the ice, what could be different ice breaking activities. हो सकता है एक सेशन में ice breaking activities पे भी कर दूं आपके लिए, right? सो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज पे हम बात कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीजों को ब्रेक कर सकते हैं जब भी अनजान लोग मिले. चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच. डू कीप
listening, do keep imitating, practicing, analyzing your performance. That's the only way out, right? Nobody would help you out, and just try to do write something on these topics. लिखिए, सोचना पड़ेगा लिखने के लिए, और वो सोचना आपको अपने आप से मिलाएगा, इसलिए ज्यादा जरूरी है. मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है in writing, the kind of process you have to go through, that process is important, because you have to think, you have to analyze, you have to evaluate your answers, right? You have to edit your answers. तो इस ब्रेन स्टॉर्मिंग में बहुत फायदा हो जाएगा आपका. धन्यवाद.